اور میں سمجھتی ہوں کرسمس ایمانداروں کے لیے ایک سب سے بڑی برکت ہے۔ اگر ہم برکت کی بات کریں کہ مجھے خدا نے کون سی برکت دی ہے، تو کرسمس ہماری زندگی میں پائی جانے والی تمام برکات میں سے سب سے بڑی برکت ہے۔ آپ جانتے ہیں جب پہلی دفعہ انسان چاند پر گیا تو امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ایک سٹیٹمنٹ کہی اور انہوں نے کہا آج انسانی تاریخ کا سب سے عظیم ترین دن ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ابھی کرسمس سے صحیح سے واقف نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ کرسمس سے واقف ہوتا تو وہ یہ بات نہیں کہتا، بلکہ وہ یہ کہتا کہ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم ترین دن وہ نہیں جب انسان نے چاند پر قدم رکھا، بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم ترین دن وہ ہے جب خدا انسان بن کر زمین پر آیا، اور وہ کرسمس ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دن وہ ہے جب میرا اور آپ کا منجی خداوند مسیح یسوع پیدا ہوا۔ اور یقیناً بڑی کیلکولیشن لگی ہوگی، بہت پیسہ انویسٹ کیا گیا ہوگا، بہت سارے سائنسدان لگے ہوں گے، پھر جا کر یہ کیلکولیشن کی گئی ہوگی کہ کیسے انسان کو چاند تک پہنچایا جائے۔ بہت سارا علم، بہت سارا پیسہ، بہت ساری انرجی اور نہ جانے کیا کچھ۔ لیکن میرے عزیزو، انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، اگر وہ مسیح یسوع سے واقف نہیں ہے تو وہ بہت غریب ہے۔ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی پاور اس کے پاس کیوں نہ آ جائے، اگر وہ اس قادر مطلق سے واقف نہیں ہے تو وہ بہت کمزور ہے۔ انسان کے پاس کتنی ہی زیادہ ایجوکیشن آ جائے، تعلیم آ جائے، علم آ جائے، لیکن اگر وہ مسیح یسوع سے، کرسمس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے تو وہ اگنورنٹ ہے۔ جاہل لفظ تھوڑا عجیب لگے، لیکن وہ لا علم ہے، وہ نہیں جانتا حقیقت کو۔ انسان کچھ بھی کر لے، کتنا بھی وہ گرو کر لے، کتنا بھی بڑا ہو جائے، یاد رکھیے اگر کرسمس کی حقیقت سے، کرسمس کی شخصیت سے، انگلش زبان میں ایک فریز بولا جاتا ہے ریزن آف دا سیزن، مسیح یسوع جو کہ کرسمس کی وجہ ہے، جو میری اور آپ کی خوشی کی وجہ ہے، اگر وہ انسان اس سے واقف نہیں ہے تو وہ ابھی بھی لا علمی کی دنیا میں ہے، وہ ابھی بھی ناواقفیت کی دنیا میں ہے، وہ ابھی بھی جہالت کی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے۔ یسایہ نبی نے بڑا خوبصورت، جو بھی ایک حوالہ پڑھا گیا، جو بھی آیت پڑھی گئی، نہایت خوبصورت، یسایہ نبی کا صحیفہ 9 باب کی 6 آیت، اور یہ آیت ہم نے بچپن سے سنی ہے، ہم نے بارہا سنی ہے، اور اس آیت میں یسایہ نبی نے مسیح یسوع کے بارے میں 5 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آج ہم بہت تھوڑے وقت میں ان 5 الفاظ پر غور کریں گے، ہم ان 5 الفاظ کے بارے میں سیکھیں گے۔ انہوں نے فرمایا، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائی قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ 5 لفظ مسیح یسوع کے بارے میں یسایہ نبی نے بولے، اور کتنی دلچسپ بات ہے کہ لفظ جو یسوع ہے وہ ہمارے اندر ایکسائٹمنٹ کو پیدا کرتا ہے، گرم جوشی کو پیدا کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ اس کا نام عجیب، انگلش زبان میں لفظ ونڈرفل یوز ہوا ہے، حیرت انگیز، حیران کر دینے والا۔ اور میں نے کہا سچ مچ میں مسیح یسوع کی شخصیت حیران کر دینے والی ہے۔ میرے عزیزو، اگر یسوع کا نام آپ کے اندر گرم جوشی نہیں پیدا کرتا، اگر یسوع کا نام آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ پیدا نہیں کرتا، تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے ابھی تک آپ مسیح یسوع کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں، یا پھر جو واقفیت آپ رکھتے تھے آپ اسے کھو چکے ہیں، کیونکہ مسیح یسوع جو ہے وہ حیرت انگیزی کا مکمل پیکج ہے۔ مسیح یسوع کی جو شخصیت ہے وہ مکمل طور پر حیرت انگیزی کا کیا ہے؟ پیکج ہے۔ آپ مسیح یسوع کی پیدائش دیکھیں، مسیح یسوع کی زندگی دیکھیں، مسیح یسوع کی تعلیمات دیکھیں، مسیح یسوع کا قربان ہونا، مصلوب ہونا، مر جانا، پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، کیا حیرت انگیز واقعات نہیں ہیں؟ اور اس سے بھی بڑھ کر مسیح یسوع کا پھر سے آنا جو اس کی دوسری آمد ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ حیرت انگیز ہوگی۔
मसीह यीशु की शख्सियत, मैंने कहा, हमारे अंदर एक्साइटमेंट पैदा करती है, क्योंकि उसकी शख्सियत के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वंडरफुल, हैरत अंगेज। चूंकि क्रिसमस का मौका है तो मसीह यीशु की हैरत अंगेज शख्सियत में से हम मसीह यीशु की पैदाइश पर बात करते हैं। अगर हैरत अंगेजी पर ही जाना है तो मसीह यीशु की पैदाइश पर बात करें तो मसीह यीशु कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। और आप जानते हैं बहुत से लोगों को इस बात पर प्रॉब्लम है। वो सोचते हैं, हमारी बात ही ज़हन में समझ नहीं आती कि एक कुंवारी से क्यों कर औलाद पैदा हो सकती है, एक कुंवारी से कैसे औलाद पैदा हो सकती है, हमारी समझ में नहीं आती। जब उनकी समझ में नहीं आती तो वो इस चीज को कबूल नहीं करते। तो प्रॉब्लम फिर उनके समझने में नहीं, हकीकत में उनके किरदार में है, क्योंकि उनका किरदार इस बात को समझने से कासिर है कि जिस खुदा ने जमीन और आसमान को अपने मुंह के दम से पैदा किया है, ये वही खुदा है जिसने आदम को सिर्फ बिना बाप ही नहीं बिना माँ भी पैदा किया। ये वही खुदा है जिसने आदम की पसली से निकाला और हवा को बनाया। ये वही खुदा है, वही कादिर मुतलक है जो मसीह यीशु को, जो कि खुदा है, वो कुंवारी मरियम से पैदा करने की कुदरत रखता है। खुदा कादिर मुतलक है। और अगर कोई इस बात पर शक करे कि मसीह यीशु कुंवारी मरियम से पैदा नहीं हो सकता, तो मैंने कहा उनके किरदार में मसला है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कादिर मुतलक होने से वाकिफ नहीं है, वो खुदा के बड़ेपन से वाकिफ नहीं है। उन्होंने खुदा को बहुत छोटा समझा हुआ है, उन्होंने खुदा की कुदरत को बड़ा छोटा जाना है। वो समझते हैं खुदा बड़ा महदूद है। लेकिन मैंने कहा हमारा खुदा कादिर मुतलक है, उसके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब फरिश्ता मरियम के पास आता है तो मरियम कहती है, ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। आप जानते हैं फरिश्ते ने कहा कि जो कलाम खुदा के मुंह से निकला है वो हरगिज बेतासीर ना होगा, और खुदा के नजदीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जब खुदा कुछ कुदरत वाला काम करता है तो वो उसके लिए नामुमकिन नहीं है। और याद रखिएगा, हमारे लिए, ईमानदारों के लिए मसीह यीशु का कुंवारी से पैदा होना निहायत अहम नुक्ता है। क्यों? क्योंकि अगर इस बात को फर्ज कर लिया जाए कि मसीह यीशु कुंवारी से पैदा नहीं हुआ तो फिर वो किसी मर्द के तवस्सुत से पैदा हुआ, और अगर इस तरह से है तो फिर मसीह यीशु मेरी और आपकी तरह एक आम इंसान है। आम इंसान है यानी वो आदम की नस्ल से है, और अगर आदम की नस्ल से है तो उसकी जिंदगी में ऐब है, खामियां हैं, वो पैदाइशी तौर पर, फितरती तौर पर गुनहगार है। और अगर गुनहगार है फिर उसके अंदर लोहियत नहीं है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं सिर्फ इस बात को कबूल ना करना कि मसीह यीशु कुंवारी से पैदा हुआ है हमारी नजात को खतरा दे सकता है? क्योंकि अगर मसीह यीशु कुंवारी से पैदा नहीं हुआ तो उसके अंदर लोहियत नहीं है, और अगर उसके अंदर लोहियत नहीं है तो वो बेऐब नहीं है। अगर बेऐब नहीं है तो उसकी कुर्बानी पाक नहीं है, और अगर उसकी कुर्बानी पाक नहीं है तो वो काबिल कबूल नहीं है। और अगर काबिल कबूल नहीं है तो मैं और आप जिस निजात का दावा करते हैं वो एक गलत फहमी है, और मैं और आप फिर निजात याफ्ता नहीं, फिर हम अब्दी मौत की जानिब जा रहे हैं। लेकिन खुदावंद जिंदा आसमानी बाप के शुक्रगुजार है कि बात सच है कि उसका इकलौता बेटा यीशु कुंवारी मरियम से पैदा हुआ मेरे और आपके गुनाहों के कफारे के लिए, एक बेऐब बर्रा बनकर, ताकि मेरे और आप जैसे बहुत से गुनहगारों को अपनी जिंदगी का वारिस ठहरा सके। और उसने ये मुमकिन किया है। और जानते हैं मसीह यीशु ने ऐसा क्यों किया? मसीह यीशु जमीन पर इंसान बनकर पैदा हुए, और वो आसमानी था, वो जमीन पर आया। आप जानते हैं क्यों? ताकि मुझे और आपको आसमान पर ले जा सके। वो रास्तबाज था लेकिन गुनहगार बना। जानते हैं क्यों? ताकि मुझे और आपको रास्तबाज बना सके। वो खुदा था जिसके अंदर लोहियत थी, वो कादिर मुतलक था, लेकिन वो गुनहगार बना ताकि मुझे और आपको रास्तबाज बना सके। वो जो दौलतमंद था, पौलुस फरमाते हैं, वो हमारे लिए गरीब बन गया। जानते हैं क्यों? ताकि मैं और आप आसमानी बाप की मिरास में हिस्सा ले सके। और ये मसीह यीशु ने मेरे और आपके लिए किया। मुझे और आपको ये शर्फ बख्शा कि मैं और आप निजात का तजर्बा अपनी जिंदगी में रख सकें। और यसाया नबी ने मसीह यीशु के लिए कहा कि उसका नाम अजीब, वंडरफुल, हैरान कर देने वाला, हैरान कुन। और मैंने कहा अगर मसीह यीशु का नाम आपके अंदर गर्म जोशी पैदा नहीं करता, आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा नहीं करता, तो इसका मतलब है अभी तक हम मसीह यीशु की शख्सियत से मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं है। एक दफा का जिक्र है कि एक ट्रेन में एक शख्स बैठा हुआ था,
और 2 लोग उसके सामने आकर बैठ गए। अब उनको देख रहा था, उनमें से एक शख्स ट्रेन की खिड़की से, डिब्बे की खिड़की से बाहर देख रहा था और अपने साथ बैठे शख्स से कह रहा था, ये दरख्त है ना? तो उसने कहा हाँ ये दरख्त, और बड़ा खुश हुआ, कहता कितना खूबसूरत दरख्त है। फिर कहने लगा ये पहाड़ है? उसने कहा जी हाँ ये पहाड़ है। कहता बहुत खूबसूरत है। सामने वाला शख्स हैरान हुआ कि ये इतना बड़ा और बच्चों की तरह दरख्तों, पहाड़ों या समुद्रों को देखकर खुश हो रहा है। उसने से कहा भाई साहब आपके साथ जो शख्स बैठा है, क्या इसने कभी दरख्तों और पहाड़ों को नहीं देखा? उसने कहा जी भाई इन्होंने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि ये पैदाइशी तौर पर अंधे थे। आज इनकी आंखों की पट्टी खुली है, हम घर जा रहे हैं। वो दरख्त, वो पहाड़, वो समुद्र जिनका जिक्र इन्होंने सुना था, जिनको इन्होंने इमेजिन किया था, तस्वर किया था, आज जब उनको हकीकी तौर पर देख रहे हैं तो इनके अंदर एक एक्साइटमेंट है। यकीन जाने अगर मसीह यीशु का नाम, मसीह यीशु की शख्सियत आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा नहीं करती तो फिर हमारी रूहानी आंखों का इलाज होने वाला है। क्योंकि मसीह यीशु की शख्सियत मुकम्मल तौर पर हैरत अंगेजी का पैकेज है। दूसरा लफ्ज जो यसाया नबी ने मसीह यीशु के लिए इस्तेमाल किया वो है, अजीब के बाद लिखा है मुशीर। इंग्लिश ज़बान में है काउंसलर, मशवरा देने वाला, हेल्प करने वाला। आप किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी फिक्र में हैं, तो वो आपको बड़ा बेहतर मशवरा दे सकता है। आप जानते हैं मसीह यीशु कायनात का बेहतरीन मुशीर है, बेहतरीन मशवरा देने वाला है, बेहतरीन काउंसलर है। आज आप परेशान हैं, फिक्र में हैं, तरद्दुद में हैं, नाकामी में हैं, मायूसी में हैं, तो मसीह यीशु आपसे कहता है थके मांदे बोझ के लदे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वाई? मसीह यीशु किस तरह से बेहतरीन मुशीर साबित होते हैं। कुलुसियों के नाम मुकद्दस पौलुस का जब हम खत पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस रसूल फरमाते हैं सारी चीजें मसीह यीशु के वसीले से पैदा हुई और उसी के वास्ते पैदा हुई, और जितनी भी चीजें पैदा हुई वो मसीह यीशु के वसीले से कायम है। मसीह यीशु सस्टेनर है। साइंस की एक रिसर्च के मुताबिक एक कतरा पानी है, हम पता नहीं कितना पानी रोज जाया करते हैं, लेकिन साइंस की एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ एक कतरा पानी जो है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर उन मॉलिक्यूल्स को रेत में तब्दील किया जाए तो इतनी रेत बन जाती है कि आप एक शहर से दूसरे शहर तक 2 फुट का पुल बना सकते हैं। सिर्फ एक कतरे पानी में इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। और आप जानते हैं ये किसने मुमकिन किया है? यह आपके और मेरे खुदावंद मसीह यीशु ने कायनात को तख्लीक किया है, इतनी पेचीदगियों के साथ, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ, और वो चीजों को सस्टेन करता है, कायम रखता है। मेरे और आपके मसाइल का अगर हल है तो वो यीशु के पास है। मसीह यीशु वाहिद शख्सियत है जो मेरे और आपके लिए बेहतर मशवरा रखता है। जब वो किसी अंधे को देखता है, सिर्फ ये नहीं कहता कि तू अंधा है, उसे कहता है तू देख। जब वो किसी लंगड़े को देखता है तो उसे चलने का मशवरा सिर्फ मशवरा नहीं देता, उसे ताकत भी देता है चलने की। और जब वो भूखों को देखता है तो ये नहीं कहता जाएं और खा लें, बल्कि उनके लिए खाना मुहैया करता है, क्योंकि मेरा और आपका यीशु बेहतरीन मुशीर है। और सबसे बड़ी उसके अच्छे मुशीर होने की निशानी, दुनिया का सबसे बड़ा मसला गुनाह, और गुनाह के वसीले से गजब, खुदा की दुश्मनी, खुदा के गजब के फर्जंद। लेकिन उसने अच्छे मुशीर होने का सबूत कैसे दिया? वो खुद इंसान बनकर आता है, जमीन पर पैदा होता है, चरनी में उसे रखा जाता है, काम इंसान की जिंदगी गुजारता है, कामिल जिंदगी गुजारता है, और सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों के लिए कफारा देता है, मुझे और आपको रास्तबाज ठहरा देता है। ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है अच्छे मुशीर होने की। यसाया नबी ने कहा वो अजीब और क्या है? मुशीर है। तीसरा लफ्ज उनके लिए, यीशु मसीह के लिए बोला गया, खुदाए कादिर। इंग्लिश में है अलमाइटी गॉड। चरनी में पड़ा और कपड़े में लिपटा वो बच्चा सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि कौन है? खुदाए कादिर है। यसाया नबी का सहीफा 40वां बाब पढ़े तो खुदाए कादिर, अलमाइटी गॉड लफ्ज सिर्फ यहोवा के लिए इस्तेमाल होता है, वो किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन खूबसूरत बात है कि यसाया नबी ने 700 साल पहले मसीह यीशु के बारे में कहा कि वो कौन है? खुदाए
कादिर है। और मुकद्दस यूहन्ना कैसे बयान करते हैं अपनी इंजील में पहले बाब की पहली आयत में वो कहते हैं, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। अब लफ्ज कलाम, लफ्ज वर्ड बार बार आप देखेंगे कि यूज किया गया है, लफ्ज वर्ड। और अगर लफ्ज को देखा जाए तो जो लफ्ज है वो इंसान की अंदरूनी शख्सियत का एक्सप्रेशन होता है, इजहार होता है। आप किसी को उसके अल्फाजों से जांच लेते हैं कि इसकी शख्सियत कैसी है, इसका उठना बैठना कैसा है, इसका रवैया कैसा है, क्योंकि हमारे अल्फाज हमारे किरदार की अक्कासी करते हैं। और इसीलिए जब मुकद्दस यूहन्ना ने मसीह यीशु को चलते फिरते देखा तो उसने देखा कि जब यीशु चल रहा था तो उसने खुदा को चलते हुए देखा। जब उसने यीशु को मौजज़ात करते देखा तो उसने देखा कि ये खुदा है। जब उसने मसीह यीशु को तालीम देते देखा साहिब इख्तियार की तरह, तो उसने कहा ये खुदा है। इसलिए उसने ये नहीं कहा कि यीशु खुदा का नूर है। मुकद्दस यूहन्ना ने कहा कि यीशु खुदा का कलाम है, वो वर्ड ऑफ गॉड है, वो कलाम खुदा है, वो कलमा है जो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। उसने खुदा की कुदरत को लाइव देखा। इसीलिए मसीह यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु खुदा एक कादिर है। चौथा लफ्ज जो यशायाह नबी ने इस्तेमाल किया वो है अब्दियत का बाप। इंग्लिश में लिखा है एवरलास्टिंग फादर, हमेशा कायम रहने, जिससे अब्दियत जारी होती है, जिससे अब्दियत निकलती है। मसीह यीशु महज खुदाए कादिर ही नहीं, बल्कि खूबसूरत बात यह है कि ये वो खुदाए कादिर है जिसका कोई शुरू नहीं और जिसका कोई आखिर नहीं। वो सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, जो पहले से मौजूद है। अगर आपकी कायनात की तख्लीक का नुक्ता ये है और इस तख्लीक के नुक्ते से लेकर अभी तक दुनिया यहाँ तक पहुंची है, तो आपका यीशु जो है वो इस तख्लीक से कहीं पहले मौजूद है और कहीं बाद तक मौजूद रहेगा, क्योंकि वो अब्दियत का बाप है, वो अव्वल और आखिर है, वही इब्तिदा और इंतहा है, वो अल्फा और ओमेगा है। ही इज एवरलास्टिंग गॉड, अब्दियत का बाप, हमेशा कायम रहने वाला। और यीशु ने कहा इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो मैं हूँ। मसीह यीशु अपनी वालिदा मरियम से भी ज्यादा बड़े थे, वो अपने बाप यूसुफ से भी उम्र में बड़े थे, क्योंकि वो पहले से ही मौजूद है। पांचवा और आखिरी लफ्ज इस्तेमाल किया गया अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा। इंग्लिश में लफ्ज है प्रिंस ऑफ पीस। मुकद्दस पौलुस जब रोमियो की कलीसिया को खत लिखते हैं उसमें बताते हैं पहले 3 अब्वाब में कि इंसान गुनाह के बाइस खुदा के साथ दुश्मनी में है, इंसान गुनाह के बाइस खुदा के दुश्मन होने की स्टेज पर है। और फिर जब वो तौबा और निजात की बात करते हैं तो फिर 5वें बाब की पहली आयत में कहते हैं, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो अपने खुदा के साथ मसीह यीशु के वसीले से सुलह रखें। इंग्लिश में है टू बी इन पीस विद, मसीह के साथ सुलह में होना, खुदा के साथ सुलह में होना, लेकिन किसके वसीले से? मसीह यीशु के वसीले से। वो अमन का शहजादा है, वो सुलह का शहजादा है, उसी के बाइस दुनिया में सुलह कायम होती है। फरिश्ते गिडरियों के पास पैगाम लेकर आते हैं और क्या कहते हैं? आलमे बाला पर खुदावन की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी क्या है? सुलह, पीस। अब आप खुदा के दुश्मन नहीं रहे। आप जानते हैं क्यों? वो गुनाह जो आपकी जिंदगी में था जिसके बाइस आप खुदा के दुश्मन कहलाते थे, खुदा के गजब के फर्जंद कहलाते थे, मेरे और आपके मुनज्जी ने हमारे गुनाहों का कफारा दिया और बाप के साथ हमारी सुलह कराई। और अब हम खुदा के दुश्मन नहीं रहे, बल्कि हमारी बाप के साथ क्या हो गई है? सुलह हो चुकी है। और अब मसीह यीशु वो अमन का शहजादा, वो सुलह और सलामती का शहजादा एक ऐसी बादशाहत कायम करेगा जिसमें सिर्फ मोहब्बत होगी, जिसमें सिर्फ इत्मीनान होगा, जिसमें सिर्फ सुलह और सलामती होगी। जब मसीह यीशु ने सलीब पर जान दी तो अपने चहीते शागिर्द को अपनी वालिदा सौंप दी। फिर बाप से कहा, बाप मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हूं। मसीह यीशु ने अपनी वालिदा अपने शागिर्द को सौंपी, अपनी रूह अपने बाप को सौंपी। मसीह यीशु की बॉडी यूसुफ नाम एक शख्स को सौंपी गई।
कि उसे दफनाया जाए। और आप जानते हैं मसीह यीशु ने अपना अमन किन को सौंपा है, अपनी सलामती और सुलह किन को सौंपी है? ईमानदारों को सौंप दी है। उसने अपना अमन, अपनी सुलह, अपनी सलामती ईमानदारों के दिलों में रख दी है। अब ये सुलह, ये सलामती, ये इत्मीनान आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। उस अमन के शहजादे ने बाप के साथ आपकी सुलह कराई है और आपको हमेशा के लिए बाप के साथ सुलह में एक ऐसे अब्दी ताल्लुक में बांध दिया है जो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। एक दफा का जिक्र है, रोड साइड पर एक खातून गिरी पड़ी थी, बहुत बुजुर्ग थी, और उनको उठाया गया और हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर्स को पता चला कि ये बचेंगी नहीं। तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर्स ने कहा कि एक पास्टर को बुलाएं, वो इनको तौबा करवाएं, इनसे इकरार करवाएं, इससे पहले कि ये मर जाएं, ये अपनी जिंदगी मसीह यीशु को दें। अब पास्टर साहब आए और उस बूढ़ी खातून के मास्क ऑक्सीजन लगा हुआ था और उसे कहने लगे, बुजुर्गा, क्या आप खुदा बाप के साथ सुलह करना चाहती हैं? उन्होंने यूं सर हिलाया। फिर उस पास्टर ने पूछा, बुजुर्गा, क्या आप मरने से पहले खुदा बाप के साथ मसीह यीशु के वसीले से सुलह करना चाहती हैं? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने ना में सर हिलाया। अब डॉक्टर्स भी परेशान कि ये क्यों नहीं यीशु को कबूल करना चाहती। फिर उस बुजुर्गा ने अपना ऑक्सीजन मास्क उतारा और कहने लगी, मैं आज से 30 साल पहले खुदा बाप के साथ सुलह कर चुकी हूँ। अब मैं अपने मसीह यीशु के अपने इत्मीनान में शामिल होने के लिए जा रही हूँ। मेरे लिए अगर कुछ करना है तो मेरी कब्र पर RIP लिख दीजिएगा, रेस्ट इन पीस, जब तक मसीह यीशु ना आ जाए। क्योंकि मैं अपने इत्मीनान और तसल्ली उस अमन के शहजादे के वसीले से हासिल कर चुकी हूँ। आज कितने ईमानदार हैं क्रिसमस के मौका पर, इस क्रिसमस के मौके पर, जो जानते हैं कि मैं बाप के साथ सुलह में हूँ, उस अमन के शहजादे के साथ, उस मसीह यीशु, वो जो अमन, सुलह और सलामती का शहजादा है, उसके वसीले से कायम शुदा सुलह का हिस्सा हूँ। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीले से हम सबको